मध्य प्रदेश के चौथे रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी ग्राउंड में हुआ। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस मामले पर 96 इकाइयों को आशय पत्र जारी किए गए, वहीं 240 एकड़ जमीन आवंटित की गई। देश के जाने माने 20 उद्योगपतियों से 1-to-1 से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस इन्वेस्टर समिट में 23,000 करोड़ का निवेश होगा, वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। इस दौरान हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा ने उद्योगपतियों, इन्वेस्टर्स और समिट में मौजूद राजनेताओं से खास बातचीत की। तो रीजनल इंडस्ट्रियल एनक्लेव में आज हम सागर में जुटे हैं मध्य प्रदेश के, और आपको बता दें बुंदेलखंड के लिए बहुत सारी सौगातों की भरमार होनी है। राउंड टेबल की मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे साथ उनमें थाईलैंड से एक इन्वेस्टर इस वक्त है। सबसे पहले वेलकम करते हैं इंडिया पे, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो कह रहे थे कि वो उनके मित्र भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। वेलकम टू इंडिया, एंड आई जस्ट वांट टू नो दैट टुडे हाउ यू फील कम टू हियर, एंड हाउ डू नो दैट इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स के लिए जो बातें, हाउ यू फील दैट? First of all, I'm happy to be here in this historic place, and I believe that visiting this investment important forum, I see there are a lot of opportunities for our both countries, given the fact that we have long history, which gives us very good historical heritage background, as well as we develop now the strategic partnership between Mongolia and India. Historically, we call each other spiritual neighbors. So which gives us broad of opportunities to develop. So I'd just name some of them at least, because first of all, the agriculture, it can be very good, interesting part of our cooperation, since given the know-how of Indian agriculture sector and the workforce, we can do very good business indeed. Because Mongolia, by territory, we half of India, by population only 3.5 million. So which gives us huge territory untapped. So we can use that land for the agriculture business. I know that India is, some areas are closed for the agriculture because of the lack of land. So based on that, also we can do very good business in husbandry. Since Mongolia, we have more than 70 million of livestock. So cashmere, wool, as well leather, as well dairy products is also a good part of our cooperation. And the next thing I believe that is mining is a very good opportunity for us, because Mongolia is a rich country. We have a huge deposit of copper, coking coal, gold, uranium, as well as the rare earth elements. So I believe for Indian people, Indian Business Association Society, it will be very good area for cooperation. The next thing I believe is the tourism. In Mongolia, we have a huge respect for Indian people. And Mongolians see India as land of Lord Buddha. So every Mongolian wants to visit India at least once. So there are a lot of opportunities for developing tourism to India from Mongolia. Mongolians are very interested in the Indian culture, custom, cuisine, you name it, And also, Mongolia is one of the few countries that managed to preserve its pristine nature. So based on that, the Indian tourists who are interested in nature, staying close to nature, adventure nature, hiking, you name it. There are possibilities huge. So I just named out a few of them, but there are much more. And of course, IT sector, you name it. India is a leading IT player in the world. So Mongolia, as a landlocked country, small country, wants to be also strong and well developed in IT terms. Okay. In the perspective of India, have you think anything planned for the future in India? Because everything you told me about the Mongolia, here in India, in Madhya Pradesh, today we are in an investors meet. So have you any plan for the Indias and this cluster? Yes, today here I met a couple of local business people with whom we can do good business. And I will do my best to connect them to Mongolian business people who is also doing the same business. So they will do the cooperation by themselves, because for us, for diplomats, it's our duty to bring them together. Of course, the business will be done by themselves, but I'm confident that given the business environment as well as the investment environment by the Honorable Chief Minister in Madhya Pradesh, will help a lot. Okay.
थैंक यू सो मच टू टॉक टू अस। एंड आपको बता दें कि मंगोलिया से ये हमारे साथ थे, थाईलैंड से, बहुत सारे कोल माइनिंग को लेकर देखिए उन्होंने बात की। माइनिंग के सेक्टर में मध्य प्रदेश भी बात कर रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर आकर, क्योंकि प्रदेश के मुखिया जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव है वो कह भी रहे थे कि सिर्फ देश प्रदेश नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे और आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भी हम होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने भी अपनी एक अप्रोच की है, और क्योंकि वो कह ही रहे थे कि वो उनके कहीं ना कहीं वन ऑफ द फ्रेंड भी हैं, तो आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत सार्थक हुआ है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्रियल एनक्लेव में हम सब आज यहाँ सागर के बुंदेलखंड पर बात करने आए हैं, और जाहिर तौर पर कई सारे इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। हमारे साथ गीतांजलि ग्रुप से इन्वेस्टर्स हैं, और इन्होंने तो मंच से ही बहुत सारी चीजों की सौगात दी है। राउंड टेबल पर क्या हुआ और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक मध्य प्रदेश सागर के लिए, क्या कहेंगे सर? जो आज की रीजनल कॉन्फ्रेंस है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि क्षेत्रों में पूरे प्रदेश के अलग अलग एरियाज में आपने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की है, वो एक अपने आप में अनूठा प्रयोग है। उनका ये विजन दर्शाता है कि स्टेट के लोगों का विकास हो, और छोटे उद्योगों का, लघु उद्योगों का, हाथकरघा उद्योगों से लेके बड़े इंडस्ट्री तक का विकास की बात होती है। जब खाली शहरों में ही होता तो बड़े उद्योगी आते हैं, जबकि रीजनल लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट समिट होती है तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे लेवल से काम उसमें होता है, और सरकार उसका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा कि यह आपका विजन है जो अन्य प्रदेशों में नहीं है। कितना रोजगार की दृष्टि से इसको सफल मानते हैं, क्योंकि आज बात हुई है उसकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोजगार और जो बेरोजगार है उनके लिए? मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार प्रयास है। जो आपने देखा होगा कि बहुत छोटे से लेके उद्योगपति, छोटे स्टार्टअप्स, सभी लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। उन सबका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, और अगले 3-4 सालों में आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से स्टेट सबसे आगे निकलने वाला है। एक छोटा सा सवाल, आज जो एमओयू साइन हुए हैं, जो बात हुई, जो सौगात हुई है, उसको धरातल पर कब देखें? और प्रदेश के मुखिया ज्यादातर इस चीज को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आपको मुख्यमंत्री जी के विजन और सरकार के सभी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा कार्य किया है। आप मानेंगे नहीं कि पिछले जब मेरे से भी बात हो रही तो आधी रात तक, बल्कि 11:30 बजे तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि आपको आना है, इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि गीतांजलि ग्रुप जो कि पैसिफिक के नाम से स्टील प्लांट यहाँ डाल रहा, ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। आयरन और माइनिंग करने के साथ ही उसका TMT तक और प्लेट्स बनाने तक का इस प्रोजेक्ट में काम होगा। ये भी आपको मैं बता दूं कि हमने सभी तरह की परमिशंस अभी तक सभी प्राप्त कर लिए, और सरकार इसमें का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। नहीं तो ये दूसरे प्रदेशों में इसमें 2 से 3 साल ज़्यादा लगते। इस प्रदेश में हमें सभी काम बहुत जल्दी किए गए हैं, और हम इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए बल्कि हमने ग्राउंड पे सब काम स्टार्ट भी कर दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम फाउंडेशन स्टोन के लिए बात की है, जो कि विदिन 1 मंथ हम उसको पूरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज क्या कहेंगे, जो उन्होंने प्रोग्राम कंडक्ट किया? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का विजन है, वो आभार के पात्र हैं। हम उन सबको बधाई देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से कार्य किया, और उनका विजन मेरे हिसाब से बहुत सराहनीय है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, गीतांजलि ग्रुप को पूरा संचालन, पूरा होल्ड दिखते हैं, और कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने कही है, प्रदेश के मुखिया की सराहना की है, और उन्होंने खुद भी एक बड़े निवेश की यहाँ पर श्योरिटी दी है। उन्होंने कहा राउंड टेबल पे जो बात हुई है बहुत जल्द उसको धरातल पर उतारेंगे। चलिए, तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में हम सब हैं, प्रगति के पथ पर अग्रसर बुंदेलखंड। कितना करने की कोशिश है, कितना किया गया है, वो आज यहाँ के नज़ारे से साफ पता चला। और तमाम डेलीगेट्स जो आए हैं, जो इन्वेस्टर्स आए हैं, उसी में से एक हमारे साथ राजस्थान से ओसवाल ग्रुप से पंकज जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सबसे पहले स्वदेश न्यूज़ में आपका। और आज आप आए क्योंकि कहते हैं ना, ग्रोथ की बात होती है, इन्वेस्ट की बात होती है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो रही है। किस तरह से इन चीज़ों को आज आपने देखा और आपकी राय? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले भी कई बार ये बोल चुके हैं कि हमारे देश को, हमारे को 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनाना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर देश को 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनाना है तो उसमें जो प्रदेश होते हैं उनका अहम रोल रहने वाला है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का अहम रोल रहने वाला है। लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अगर इंडस्ट्री वाले साथ में नहीं हो
तो उससे पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री, कॉमन मैन, आम आदमी जब साथ में होगा तभी हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बन पाएंगे। तो मेरा फिर आह्वान है सभी से कि हम सब मिलकर काम करें, सब मिलकर आगे बढ़ें, तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बन पाएंगे। आपको मैंने सुना था, आपने भी इन्वेस्टमेंट की बात की है। कितनी एक कहते हैं ना ग्रोथ मध्य प्रदेश में सागर के लिए, बुंदेलखंड के लिए आपने देखा और आपने सोचा, क्योंकि उसके जरिए से कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अपने आप एक बेहतरीन पहल है। हम लगभग 20 साल से यहाँ पे हैं और मुझे याद आता है कि जब मैं पहले आया करता था तब यहाँ पे रोड और पानी और कुछ भी नहीं होता था। तो हमने वो दिन देखे हैं जब रोड और पानी नहीं था। आज तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, थैंक्स टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, कि अब उन्होंने अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली इन्वेस्टर फ्रेंडली एरिया। मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। आज आप लोगों ने अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशंस में देखा होगा कि यहाँ पे कितने तरह के अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी जो कि हमने अभी फर्टिलाइज़र का कर रखा है बिजनेस, उसमें हमने आज फिर से आह्वान किया है कि हम 500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट और प्लान कर रहे हैं। दिस विल बी एन एक्सपेंशन ऑफ आवर प्रेजेंट फर्टिलाइजर बिजनेस एंड वी एक्सपेक्ट अनदर 2 लाख टन एडिशनल कैपेसिटी फॉर द फार्मर्स ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर और माइनिंग को लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ बहुत कहीं ना कहीं देखी जाती है। उसके लिए क्या प्लान्स? एग्रीकल्चर और माइनिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र मिनरल और माइनिंग से आता है। तो मिनरल और माइनिंग का जो कनेक्शन फर्टिलाइज़र से होते हुए हमें अल्टीमेटली तो ग्रोथ देगा ही देगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं हमारे देश में, हमारे स्टेट में, उन्हें हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बेस्ट एक्सप्लॉइट करना चाहिए। क्योंकि अभी भी फर्टिलाइज़र के मामले में इंडिया इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंट। Almost 90% of the nutrient is being imported either in the form of raw material or finished goods. तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे देश में अवेलेबल है या मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, उसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इसी एक्सप्लॉइटेशन के तहत हम जो मध्य प्रदेश का जो रॉक फॉस्फेट है उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं और उससे खाद बना रहे हैं और किसानों को बेच रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये प्रयास है, उनकी ये मेहनत है और वो हमेशा कहते भी हैं कि विकास के अग्रसर हमें जाना ही है। मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया गया। तो उनके लिए क्या कहेंगे? और महत्वपूर्ण सवाल कि आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हम जाएंगे, अभी हम रीजनल में थे, तो उसके लिए क्या? हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का तो मेरा ये मानना है कि ही इज़ नॉन मैचेबल। हमने उनसे लगभग 2 बार मुलाकात करी है और दोनों बार जो उनका जो पॉजिटिव रिएक्शन होता है किसी भी हमारी प्रॉब्लम को लेके या किसी भी हमारी क्वेरी को लेके, मेरा ये मानना है कि मैं काफ़ी पॉलिटिकल लोगों से मिलता रहता हूँ, लेकिन जिस स्पीड से वो एक्शन ले रहे हैं, जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अब नई ऊंचाइयाँ छुएगा। नए तरीके से काम कर रहे हैं, नए तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ को इस सब का फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुई है, लगातार आने वाले समय में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पूरा प्लान बना हुआ है। लेकिन आज जो हमने बुंदेलखंड के लिए दिखा, जो सागर के इस पृष्ठभूमि पर, इस धरा पर देखा है, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक था। बहुत सारी चीजों पर काम किया गया है। राउंड टेबल की मीटिंग भी हो चुकी है और अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मोहन यादव की होनी है, वहां से सारी क्लियरिटीज और मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल सच होगा कि कहीं आने वाले समय में निवेश की दृष्टि से, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को, बुंदेलखंड को, सागर को सशक्त बनाना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में इस वक्त हम खड़े हैं। बुंदेलखंड को बढ़ाने की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है और इस वक्त हमारे साथ एक और इन्वेस्टर हैं जो, क्योंकि कई सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, हमारे साथ सीताराम जी हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में आपका। और जिस तरीके से एक ये प्लान निवेश की दृष्टि से हमने देखा है, लगातार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बहुत प्रयासरत है। आज यहाँ पे हम सबका इकट्ठा होना, आप सब लोगों का आना, किस तरह से आज के दिन को आपने महसूस किया? क्योंकि आप आए हैं, कई सारी चीजों के लिए बात हुई है, और आपने क्या एक प्लान किया मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए? बेसिकली जब से सीएम साहब सीएम बने उस समय से मैं इसमें बहुत ही मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। और सीएम साहब की जो एनर्जी लेवल और जो काम करने का तरीका है बहुत ही अमेजिंग है। वो बहुत ही फास्ट और स्पीड है और उनकी जो टीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही अच्छा है। तो हम इसलिए आगे से आगे प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस है और जो फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की है वो मिनिमाइज है। तो ऑलरेडी हम खुजराहो में एशिया का पहला हेलीकॉप्टर एफटीओ खोल रखा है और फिक्स विंग का भी है, जिसमें आज़ादी के बाद पहला एफटीओ है जिसमें हेलीकॉप्टर के पायलट बनाते हैं। और प्रेम श्री कनेक्टिविटी को पूरे मध्य प्रदेश को हमने कनेक्ट किया। आज गरीब से गरीब आदमी जो जहाज़ में उड़ने का सपना था वो पूरा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पूरा किया। आप सोच नहीं सकते कि जो
1500 रुपये में या 2000 रुपये में टिकट लेके यदि फ्लाइट में घूमता है तो उसको कितनी खुशी होती है, कितनी ब्लेसिंग देती है। और ये सब ब्लेसिंग और जो काम करने वाले हैं ऑनरेबल सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है, और इसलिए हम आगे से आगे और काम करने जा रहे हैं यहाँ। और अभी 3-4 एयरपोर्ट को हम बड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड से वो कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें कार्गो और इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार में एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा देने के लिए हम इसमें आगे काम करने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमने यहाँ मैन्युफैक्चर का भी प्लान किया, जिसमें हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन फ्लाइंग कार का हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। और हमारी नेक्स्ट ईयर शेड्यूल एयरलाइंस आ रही है, तो उसको उज्जैन को हम कनेक्ट कर रहे हैं मेट्रो से, दिल्ली से और बॉम्बे से, जहाँ बड़े मेट्रो से कनेक्ट करके जहाँ की श्रद्धालु सीधे यहाँ आए और भगवान के दर्शन करके, महाकाल दर्शन करके सीधा वहाँ जाए। तो बहुत सारी प्लानिंग है। और ये मध्य प्रदेश बहुत ही पीसफुल और क्राइम फ्री का स्टेट है, तो हम हर बिजनेसमैन यहाँ सिक्योर फील करता है और सेफ फील करता है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ मध्य प्रदेश में लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली एविएशन से रिलेटेड, और एविएशन में यदि जाएंगे ग्रोथ होगी, रोजगार लोगों को मिलेगा। एक छोटा सा सवाल बस आपसे, क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है, रोजगार देने की भी बात हो रही है और डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है, जो पहल है प्रदेश के मुखिया की, इसको धरातल पर कब उतरते देखे? क्योंकि राउंड टेबल मीटिंग आप लोगों की हुई है, तो उम्मीद जागती है लोगों में कि धरातल पर हम सफल होते हुए कितने वक्त में देख पाएंगे? बेसिकली धरातल में हमारा फास्ट व्यू ऑलरेडी हम 25 साल से एविएशन इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हम विद इन 6 मंथ से सीएम साहब का हमारा फरवरी में प्लान है कि इनोवेशन कराने का। तो हम इतना फास्ट करें, फेज वाइज होगा, लेकिन स्टार्ट हम विद इन 6 मंथ के अंदर ही स्टार्ट करेंगे, ताकि जो स्टेट का डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर पाए और यहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, स्वदेश न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीताराम जी हमारे साथ थे और एविएशन को लेकर काफी डेवलपमेंट उन्होंने पहले भी किए हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश की जर्सी से कई एयरपोर्ट्स की प्लानिंग हो गई है और जिस तरीके से मीटिंग हुई है, उन्हें लगता है 6 महीने के अंदर पूरी कोशिश होगी कि धरातल पे भी सामने लाया जाए। तो यानी कहीं ना कहीं इस मीटिंग का होना, इस निवेश का होना आने वाले समय में मध्य प्रदेश, सागर और बुंदेलखंड के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आकाश सिंह राजपूत हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। आज जो भव्य आयोजन सागर में हो रहा है, उनका क्योंकि जन्मदिन भी है, तो हम तो शुभकामनाएं देंगे स्वदेश न्यूज परिवार की ओर से। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सबसे पहले। और आज का जो आयोजन है, जो मुझे लगता है बहुत अग्रसर होने की बात है, निवेश की बात है, किस तरह से पूरी आज तैयारियां की गई हैं और कितना सफल मानते हैं? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, जिनके ये प्रयासों से आज रीजनल इंडस्ट्री समिट सागर में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जिस चीज़ के लिए युवा सपने देखते थे, जो रोज़गार का सपना होता है, एम्प्लॉयमेंट का सपना होता है। बहुत समय से ये चर्चा में था कि सागर में रोज़गार के विषय में किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो पाएंगी। हमारे बहुत स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है, जहाँ पे बीड़ी उद्योग है, छोटा कुटीर उद्योग है और टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट से भी सागर में बहुत सारा स्कोप है। उसी को देखने के लिए आज यहाँ पे सागर, मुंबई और आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत कंपनीज आई हैं, जो आज सागर की पूरी दृष्टि से देख रही हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स हम यहाँ पर लेके आने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ ये सफल रहे। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, क्योंकि लगातार डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है निवेश के लिए। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत टाइम से प्रयासरत थे और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो सागर में हो रहा है, मुझे लगता है बुंदेलखंड को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, और वो जैसे जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना है, वो जितनी ग्रो कर रही है, लगातार अपने पूरे होने पर पहुंच रही है, वो जितनी जल्दी कंप्लीट होती है, बुंदेलखंड को बहुत फायदा। तो मुझे लगता है जो कहा जाता था बुंदेलखंड के लिए, शायद आज इस धरती से, इस जगह से उसकी रूपरेखा बदलेगी। जी जी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से केन बेतवा नदी की आपने चर्चा करी और आयरन ओर्स भी हैं, जो माइनिंग सेक्टर है, हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो अभी छुपी हुई हैं। आज रीजनल इन्वेस्टमेंट के नाते बहुत कंपनीज यहाँ पे आएंगी, जो अपने आप को एक विस्तार रूप में सागर का और हमारे बुंदेलखंड की खूबसूरती भी देखेंगी। और उसी खूबसूरती के साथ जब आपको बुंदेलखंड के प्यार भी मिल जाता है, तो वो संपूर्ण बुंदेलखंड को एक ऐतिहासिक रूप में, पूरा सांस्कृतिक रूप में एक विस्तार एम्प्लॉयमेंट के नाते यहाँ पर हो। मैं यही कामना करता हूँ कि आज कंपनीज को कुछ पसंद आए। और जिस तरीके से हमारी बीना रिफाइनरी है, जहाँ पे 400 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं,
उसी के साथ साथ अब प्लास्टिक फैक्ट्री भी हमारे बीना में खुलने जा रही है और बीना भी एक सागर संभाग का बहुत अनमोल हिस्सा है। उसी के साथ साथ अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड विस्तार रूप में एक विशाल आकार ले रहा है, उसी आकार में मैं चाहता हूं अब और कंपनीज आएं और एक ग्लोबल समिट को हम यहां सागर से स्थापित करके पूरे दुनिया में अपना बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। बस यही कामना करता हूं। आकाश जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आकाश सिंह राजपूत, उनको लगता है बेहद खुश नजर आए हैं, उनका जन्मदिन भी है और दूसरी चीज ये भी कि सागर की धरती से, सागर की जगह से यदि निवेश को बढ़ावा मिलता है तो सागर का नाम होगा, बुंदेलखंड का नाम होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है एक बड़ी बात, बड़ा भव्य आयोजन है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।